Good morning, students. Today we are going to start with our economics. As you can see in the slide, the very first topic or very first lesson of your textbook is Introduction to Micro and Macro Economics. Today in my first lecture, I am going to cover the features of microeconomics as well as meaning and definition. So let us begin with the second slide. Very important objective which you need to remember. The very first thing is who for the first time coined the term micro and macro economics. That means ऐसा कौन सा पर्सन था जिसने पहली बार माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड यूज किया. The answer is he was Ragnar Frisch. He used this term in 1933. He was a professor in Oslo University and he was a winner of the Nobel Prize for Economics in 1969. So you have to remember the name of the person. It is one of the favorite objective of the 12th standard board questions. So you must remember who coined the term micro and macro economics. We are moving with now meaning of microeconomics. You must be having textbook at your home or you have PDF file. You should go through the PDF file also. I am giving you the concept microeconomics in detail right now. Meaning of microeconomics, as you can see, the first point highlights about the Greek word micros, meaning small or millionth part. The word microeconomics originated from the Greek word micros. अभी माइक्रोइकोनॉमिक्स या माइक्रोस्कोप क्या होता है इतना तो आपने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में. माइक्रोस्कोप छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए यूज़ किया जाता है और यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड का मीनिंग ये लिया गया है कि बहुत छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं इकोनॉमी के, अगर हमें उनका स्टडी करना है तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स ही यूज़ करना पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अर्निंग कर रहे हैं, वी आर earning individually, a person is earning individually, but our individual income is a part of total national income. So individual income is microeconomics and national income is a large concept. So here we are moving with small part of the economy. That means we are talking about a very small individual unit. Our second point is it studies the economic actions and behavior of individual or particular unit. The very important point, whenever you are writing your answer of microeconomics, you must write the word individual or particular. Now, what do you mean by studies the economic action and behavior? First of all, you know that economics deals with wealth. Economics deals with money. Microeconomics helps you to know whatever resources you are having in hand. For example, you are having 1000 rupees in your hand and you want to celebrate your birthday party. Now with 1000 rupee, if you are going to plan to go to Pizza Hut, obviously carrying 3 to 4 person for that party will not serve the purpose because your wealth is less and your expenses will be more. So here microeconomics helps you to find out what would be the appropriate way to spend our resources individually. That means microeconomics helps you to study what action you can take with your limited resources. So at an individual level, it gives you the study of your rational economic decisions. Third point, they have given you example. Microeconomics helps you to take decisions. It can be an individual consumer, an individual producer, individual firm,
individual demand of a person, individual supply, or you can use the word price of a particular commodity, or a factor. You must remember there are 4 factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneur, which you have already done in 11th standard. This is our meaning of microeconomics. Once again, I am compiling. It originated from the Greek word micros, meaning small or a millionth part. It studies the economic actions and behavior of individual or particular unit. For example, individual consumer, individual producer, individual firm, individual demand, individual supply, prices of a particular commodity or a factor, etc. Now it is important for us to write one definition relating to this. So my third slide belongs to the definition of microeconomics. I have chosen for you the definition of Maurice Dobb, which is very small to remember. Definition is microeconomics is in fact a microscopic study of the economy. You know that full economy is a large concept. Large means macro. It is a macro concept. But when we are talking about microeconomics, it is definitely a microscopic study of the economy. I hope this is very easy for you to remember. So please learn this definition well. Now we are going to start with the features of microeconomics. In features, they have given us 8 points total. So in my first slide, I am discussing about 4 points. The very first point is study of individual units. As we have done in meaning, we have covered in meaning. Our first point is study of individual unit, which we have already done. Now you can compile up those wording over there here only once again. So microeconomics is the study of behavior and actions of individual economic units like individual firm, individual price, individual household, individual commodity, prices of particular goods, prices of factors, etc. So my first point is compilation of your meaning only. So nothing to worry, you can write that point only over here. Your second point is price theory. Now this point is very, very important because from this point only you will be able to learn about the scope of microeconomics. Price theory. Now about price theory, माइक्रो बोलते हैं आपने कभी कोई गुड्स, बेटा आप बिजनेस में जाओगे, आपने मान लेते हैं कोई भी गुड्स बनाया. फॉर एग्जांपल आपने एक पेन बनाया है, यू आर प्रोड्यूसिंग पेन्स फॉर द फर्स्ट टाइम. नाउ द कॉस्टिंग ऑफ द पेन क्या रखना है, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. आपको कोई भगवान रात को सपने में आके नहीं बोलेगा कि बेटा सुबह पेन का ये प्राइस आप रख दो, यू विल बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. ऐसा नहीं होता है. हमें बहुत अच्छे से उसके स्टडी करना पड़ता है डिटेल में कि हमारा कॉस्टिंग कितना पड़ा, हम उसको कितने में बेचकर कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट से कमाना है या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पे जाना है. तो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे जिसका आपको स्टडी करना पड़ता है और उसके बाद ही आप डिसीजन लेते हो कि आपको उसका कॉस्टिंग क्या रखना है, आपको उसका प्राइस क्या रखना है. माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करता है, एक एंटरप्रेन्योर को हेल्प करता है कि गुड्स के प्राइस और सर्विसेज जो प्रोवाइड किए जाएंगे उनके प्राइस क्या रखे जाने चाहिए. उसके लिए माइक्रो थियरी ही हेल्प करती है आपको, जिसका वर्जन है प्राइस थियरी. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज as well as, please pay attention to the word as well as over there, as well as prices of factors of production. So you must remember there are two particular points. First is prices of goods and services, that is product pricing, as well as prices of factors of production, that is factor pricing. So theory of microeconomics
help you to find out the prices of goods and services as well as the prices of factors of production. Under the scope of microeconomics, you are going to cover these 2 points. The first will be theory of product pricing, second will be theory of factor pricing. We are moving to the third point, that is partial equilibrium. Now partial itself means a part. So partial का मतलब क्या लेंगे हम कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट यानी कि कस्टमर का एनालाइज करता है और बताता है कि इंडिविजुअल कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पर आएगा. अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब उस पर्टिकुलर जगह पर या उस पर्टिकुलर अमाउंट तक उसको खर्चा करना चाहिए जहाँ तक उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है. दैट इज इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट. Now equilibrium analysis, that is a part you are studying. Now it's very important point to remember over here is microeconomics deals based on certain assumption which you have seen in the next point, but over here I am discussing this to explain partial equilibrium. Microeconomics definitely is based on certain assumption, and very important assumption is this, that everything does not depend upon everything else. ये मान के चलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स कि एक चीज़ का असर दूसरे पे होता ही नहीं है. आपको तो अच्छे से पता है अभी कोविड की वजह से इकोनॉमी बहुत बहुत डाउन जा रही है. इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई को इंक्रीज किया है. देयर इज एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई. Modi has announced the package, so there is an increase in the money supply. Now, what would be the effect of money supply? When money supply increases in the economy, it boosts up your production, employment gets generated, so people get more income and they are in a position to spend more. When they spend more, definitely the demand for goods and services increases. So one thing relates to another. पहले मनी सप्लाई बढ़ाया गया, मनी सप्लाई की वजह से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ा. जब प्रोडक्शन बढ़ता है डेफिनेटली लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है. जब एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को तो उनको इनकम जनरेट होता है, और जब लोगों के पास इनकम होती है बेटा तो ऑब्वियसली वो खर्चा करेंगे, और जब खर्चा करेंगे ही तो डिमांड बढ़ेगा. ये एक लॉ है, इसे यूज़ किया जाता है मैक्रो लेवल पे, क्योंकि ये माना जाता है एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन एवरीथिंग एल्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा मान के चलता है. लेकिन माइक्रो लेवल पे ये माना जाता है कि एवरीथिंग डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एवरीथिंग एल्स. यहाँ पर आपका जो पॉइंट आता है वो ये कह रहा है कि इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस एंड इट स्टडीज इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली. एक पर्टिकुलर यूनिट को अलग कर लिया जाता है और सिर्फ उसका इक्विलिब्रियम देखा जाता है. उसमें हम ये डिसाइड करके या एज्यूम करके चलते हैं कि एवरीथिंग डज नॉट डिपेंड ऑन एवरीथिंग एल्स. दैट मीन्स वो जो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन आई है इट इज़ फॉर इंडिविजुअल पर्सन और उसके ऊपर किसी और फोर्सेस का कोई भी असर नहीं है. फोर्थ, it is based on certain assumptions. Now microeconomics is based on the assumption that other things being constant. A word is written over there is ceteris paribus. Now ceteris paribus itself means other things being constant. Assumption इसकी क्या है? एजम्पशन ये है, मैंने पहले ही कहा कि ये एज्यूम करके चलता है कि कोई भी चीज़ दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करती, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा एज्यूम करता है और एक इंडिविजुअल पर्सन के इक्विलिब्रियम को बताता है.
फॉर एग्जाम्पल ये एज्यूम किया जाता है कि देयर इज़ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि आप जो भी बना रहे हो वो सब कुछ बिक रहा है एक ही प्राइस पे, देयर इज अ सिंगल प्राइस इन द मार्केट। डिटेल स्टडी आपको आगे आएगा, आपको फुल फ्लेज चैप्टर आएगा उसके ऊपर। अभी के लिए आपको ये वर्ड को रिमेंबर रखना है, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। देन कम्स लेसेस फेयर पॉलिसी। इट मीन्स ये मान के चलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, देयर इज नो गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट का कोई रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा मान के चलता है, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। देन इट एज्यूम्स प्योर कैपिटलिज्म। ये एज्यूम करके चलता है कि इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद द मनी फैक्टर। फुल एम्प्लॉयमेंट, you can assume, once again it is assumed that there exists full employment level in the economy। तो इन सब पॉइंट्स को देखकर आपको ऐसा लगेगा डेफिनेटली कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हमें इसे एक कंडीशंस मान के चलना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू यू। योर फिफ्थ पॉइंट वुड बी slicing method। Now comes slicing method। ब्रेड का स्लाइस देखा है ना बेटा आपने? ब्रेड अगर पूरा आपके विजन में आता है तो ब्रेड को आप कहेंगे लंप, और जब हम उसको कट करते हैं पीसेस के अंदर तो हम उसको कहेंगे स्लाइस। अभी अगर आपको एक केक दिखा दिया जाए, पूरा केक है, और आपको बोला जाए बताओ ये कैसा है, अभी कैसा है आप उसके देखकर उसको सिर्फ ये बता सकेंगे कि हाँ अच्छा दिख रहा है, बहुत सुंदर से डेकोरेट हुआ है, बहुत बढ़िया टेम्पटिंग लग रहा है, लेकिन जब तक आप खाओगे नहीं आप उसके बारे में डिटेल में नहीं बता सकते। आपको डेफिनेटली अगर अच्छे से बताना है तो आपको एक छोटा सा पीस निकाल के खाकर चेक करना पड़ता है कि उसका टेक्सचर कैसा है, उसमें टेस्ट कैसा आ रहा है, उसका मीठा कितना है, ज़्यादा है कम है। आप कभी घर पे केक बनाते हो तो ये सब चीज़ें जब टेस्ट करते हो तो ऑब्वियसली आपको उसका एक छोटा सा हिस्सा खाकर देखना पड़ता है। इसी तरह जब आपको पूरी इकोनॉमी को समझना है तो उसके छोटे छोटे हिस्सों का स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है। आप जब इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी कर रहे हो, एक इंडिविजुअल फर्म का स्टडी कर रहे हो, तो वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, लेकिन आप स्टडी सिर्फ एक को करते हो और उसके अंदाजे पर आप ये गेस करते हो कि पूरी इंडस्ट्री में ऐसा चल रहा होगा। आप एक यूनिट को कर सकते हो, दो को कर सकते हो, 5 को कर सकते हो बेटा, लेकिन पूरी के पूरे यूनिट्स को स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सिलेक्टिव स्टडी करती है और उसके बेस पर उनकी पॉलिसीज़ बनती है। दैट मीन्स गवर्नमेंट ने अगर मैक्रो लेवल पे कोई पॉलिसी बनानी है तो उसको माइक्रो लेवल यूज़ करना नेसेसरी है। विदाउट दैट गवर्नमेंट कैन नॉट फ्रेम एनी पॉलिसी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो स्लाइसिंग मेथड कैसे हेल्प करता है, आप एक बड़ी इकोनॉमी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद उस स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट का सेपरेट स्टडी करते हैं और डिटेल में स्टडी करते हैं। इसीलिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्लाइसिंग मेथड बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं। अभी एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से आपकी बुक में भी दिया हुआ है, कहते हैं व्हेन यू आर स्टडिंग इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ योर नेशनल इनकम then it is obviously a slicing method. Similarly, when you are taking out individual demand out of your aggregate demand in the economy, it once again relates to the slicing method. Your sixth point comes, that is use of marginalism principle. अभी ये मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल होता क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मार्जिनल का मतलब क्या होता है। स्लाइड में बहुत क्लियरली लिखा गया है, मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास ऑलरेडी 4 जीन्स हैं ब्लैक कलर की, 4 जीन्स ऑफ ब्लैक कलर। आपका बर्थडे है,
आपके पास आपकी फैमिली एक जीन्स खरीद के आपको देती है, आपके मम्मी पापा देते हैं एग्जाम्पल, तो वो आपके पास 5th पेयर हो गया। कौन सा? ब्लैक कलर का ही मिलता है आपको। अभी ऑलरेडी आपके पास है, 5th आपको ब्लैक वापस मिला, तो आपको कैसा फील होता है? फीलिंग ये आती है, ओ गॉड, आई ऑलरेडी हैव 4 ब्लैक कलर जीन्स, वाई यू हैव परचेज 5th ब्लैक फॉर मी, कहीं ना कहीं दिमाग में आता है। अभी उसका यूटिलिटी या उसका मज़ा आपको उतना नहीं लगता। अगर कहीं आपको ब्लैक की जगह ब्लू मिलता और जो आपके पास है ही नहीं, डेफिनेटली वो मज़ा कहीं ज़्यादा होता। यू वुड हैव लाइक दैट मोर। इसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। दैट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स ये स्टडी करता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट आने पर, एक जीन्स एक्स्ट्रा मिलने पर आपको कितना एक्स्ट्रा मज़ा आया, आपको कितना सेटिस्फेक्शन हुआ। इसी तरह बेटा इंडस्ट्री वाले भी डिसीजन लेते हैं, या कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री, पर्टिकुलर फर्म, वो वाले लोग भी डिसीजन लेते हैं कि अगर हम एक एक्स्ट्रा मशीन लगाएं तो मुझे उसका एक्स्ट्रा कितना बेनिफिट होगा, कितना एक्स्ट्रा मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा। इस मेथड को माइक्रो इकोनॉमिक्स में अडॉप्ट किया जाता है ताकि इंडिविजुअल पर्सन सेंसिबल डिसीजन ले सकें। इसे हम कहते हैं यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। अभी किसी भी पर्सन की प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो हमें इसे यूज करना ही पड़ता है। आप इसी से फाइंड आउट करते हैं, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड है, अगर वो अपने घर का बजट बना रहा है कि मंथली मुझे कितना खर्चा करना है, कहाँ कहाँ कितना पैसा लगाना है, राशन पे कितना देना है, रेंट देना है, एजुकेशन का खर्चा करना है, ऑब्वियसली वो मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अभी मार्केट स्ट्रक्चर के पॉइंट्स पर हम लोग ज़्यादा डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमें इसके ऊपर डिटेल में फुल फ्लेज लेसन दिया गया है। Microeconomic analysis deals with different market structure, for example, perfect competition, monopoly, monopolistic competition, then oligopoly, etc. So for us, right now, it is just a point because I have not discussed this point over here. We will be discussing it further in our next lessons, in which detailed explanation of the different sort of markets have been given. Your 8th point is a limited scope. सीधी सी बात है, अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया है उसमें ये दिखाया गया है आपको कि जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं उन्हें हम अगर इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं, छोटे लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर प्रॉब्लम बड़े लेवल की है, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी, अभी गरीबी हमारे देश की मेजर प्रॉब्लम है, इसके लिए अगर पॉलिसीज़ बनानी है तो मैं अकेली बनाऊं या आप अकेले बनाओ, उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। ये पॉलिसी गरीबी को कैसे ख़त्म करना है, क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी है, किस तरह से उनको काम देना है, ये सब मैक्रो लेवल का काम है जो कि गवर्नमेंट करती है। इसी तरह बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट। अभी हम छोटी जूनियर क्लासेस से ही इन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, पॉवर्टी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। आपको बहुत सारे एसेज हर बार इन्हीं के बारे में लिखने के लिए दे दिए जाते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट आपकी जनरेशन ने भी सहा, मेरी जनरेशन ने भी सहा, और आने वाली जनरेशन्स भी इसको शायद काफ़ी लंबे समय तक सहेंगी। क्यों? क्योंकि ये एक मैक्रो लेवल प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल लेवल का प्रॉब्लम ही नहीं है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता है,
इसका स्कोप काफ़ी लिमिटेड है, इसका दायरा लिमिटेड है। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्पफुल हो सकता है, इंडिविजुअल यूनिट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज अ होल हेल्प करने में, सॉल्व करने में कोई भी हेल्प ये कर नहीं पाता। हाँ, इसका छोटा सा रोल ये ज़रूर रहता है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑल्सो, कि ये उस इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है, अलग अलग प्रॉब्लम को स्टडी करता है अलग अलग लेवल पे, और उसी स्टडीज़ की हेल्प से मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप लिमिटेड है, जबकि मैक्रो का स्कोप काफ़ी वाइडर है। It does not deal with nationwide economic problems like poverty, unemployment. Then BOP. BOP is your balance of payment. Now, balance of payment क्या होता है? It is a systematic record of all economic transactions of imports and exports of a country. हमारे देश में कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम और कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उन दोनों में जो अकाउंट बनाया जाता है उन दोनों के लिए, तो वो होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी आप मान लीजिए आप इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आपका एक्सपोर्ट बहुत कम है, तो हमारा बीओपी कैसा रहेगा? ऑब्वियसली अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा पैसा बाहर जा रहा है और वहाँ से पैसा कम आ रहा है, तो हमें काफ़ी घाटा हो जाएगा। इट इज़ कॉल्ड डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका अर्निंग ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो और आपका इंपोर्ट जो है वो कम है, तो वो एक सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, एंड एवरी कंट्री स्ट्राइव्स टू गेट दैट पोजीशन, दैट इज कॉल्ड बीओपी. I think you must remember that Modi has given us one slogan in his one of speech. It is Atmanirbhar Bano. आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि आप अपने ही देश में बनाई हुई प्रोडक्ट्स को यूज़ करो बेटा। अभी आप इकोनॉमिक स्टूडेंट हैं, आप समझ सकते हैं कि जब आप फॉरेन की प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो आप यहाँ से कैपिटल ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ पर, यानी कि आपका पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है, और हमें कोशिश करनी है कि वो पैसा अपने ही देश में रहे, तो हमें आत्मनिर्भर होना होगा। दैट मीन्स आवर इम्पोर्ट्स शुड reduce. Then comes population problem. Yes, it is a worldwide problem. हमारे देश का ये मेजर प्रॉब्लम है. We are second large populated country in the world, और पॉपुलेशन की वजह से आप हालात देख रहे हो अभी क्या हैं. So it becomes very difficult to manage, and it doesn't come under the scope of microeconomics. Then economic growth, which is a major issue. We are dealing with inflation right now. There is depression also in the economy, where people are only buying essential products. So these things matters most. ये प्रॉब्लम्स, ये चीज़ें मैक्रो लेवल का काम है, इसीलिए कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ लिमिटेड स्कोप. So today, once again, I am compiling up what we have done. Our first topic is Introduction to Micro and Macroeconomics. In that, I have covered one very important objective, that is, who coined the term micro and macroeconomics? The answer is Ragnar Frisch. He used this term in 1933. He belongs to Oslo University because he is a professor. He was a professor over there, and moreover, he is the first Nobel Prize winner of economics. Then we have covered meaning of microeconomics, in which I have given you another important objective, that is from where the word micro originated. So your answer should be it originated from the Greek word micros, which means small. So I have focused over here that you must use the word individual or particular while writing your answer. So it can be individual consumer, individual producer, individual firm, particular commodity, particular factor, factors of production, etc. So please focus on writing the word individual or particular while writing your answer.
Then I have suggested you should remember the definition of microeconomics. Whenever long answer type comes, they ask you to write the definition also, because definition carry 1 mark. So you must remember, whenever you are writing the meaning and you are not writing the definition, then you will fetch only 1 mark for the meaning. And definition, if you write and it is appropriately right, then you will get total of 2 marks out of 2 only. So it is Morris Dobbs definition which you need to learn. Then we have covered features of microeconomics. Total of 8 features are given in microeconomics. First is study of individual unit. For that I have told you to refer only the meaning, learn that language, and you can write that point in the same way over here. Second, I have discussed about price theory, and especially for this particular point I have told you to remember well that in the price theory we are going to discuss prices of, we find the prices of goods and services as well as the prices of factor of production. So over here, if you have textbook, you must mark it point number 1 and point number 2, because prices of goods and services का मतलब है स्कोप में हम कवर करेंगे theory of product pricing, as well as second जो दिया है prices of factors of production, उसमें हम कवर करेंगे theory of factor pricing. So you must remember these 2 points, and you need to write about these 2 points in your explanation of point number 2. Third, पार्शियल इक्विलिब्रियम, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये मान के चलता है कि एवरीथिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन एवरीथिंग एल्स. एक बात का असर, एक चीज़ का असर किसी भी पर्सन पे होता ही नहीं है. वो एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट है, उसके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई भी असर नहीं है. वो सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट है, आइसोलेट है बाकी के फोर्सेस से, ऐसा मान के चलते हैं. और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में वो डिस्कस या एक्सप्लेन किया जा सकता है ऐसा मान के कि इट इज़ एन आइसोलेटेड यूनिट. इट डजंट गेट अफेक्टेड बाय अदर फोर्सेस. Fourth, we have covered based on certain assumptions which I have discussed in detail, that is other things being constant, like they assume about perfect competition in the market, laissez-faire policy which I have discussed, it means free from government control, pure capitalism, full employment, etc. Our fifth point was slicing method. Remember, I have given you the example of your cake. I have given you example of your bread. Out of that bread, how you cut the slices. In the same way, economy divides the whole economy into small individual units, and we do in-depth study of those individual units. For the marginalism principle, I have given you example of your jeans. I have given you example of the factory in which he is going to invest more money by buying a particular machine, extra machine. When he is going to buy extra machine, definitely he will calculate the benefit he can derive out of it. So whatever extra benefit he will derive by buying one more machine or occupying one more machine into production, so that is called marginalism principle, and it is very, very important for individual person to know about it. Then analysis of market structure. In that point, I have given you that market structure analyzation. In that we will discuss in detail later on. Analysis of market structure we will discuss later on. So as it is, the point you will remember that microeconomic analysis analyzes different market structures such as perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly, etc. Limited scope, I have already discussed in very much detail about it. Microeconomics does not deal with nationwide economic problems like major issues of poverty, unemployment, BOP, economic growth, etc. फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअली आप खड़े होकर लेक्चर दे रहे हो कि पॉवर्टी ऐसे कर देनी चाहिए, हमें वैसे कर देना चाहिए, हमें वो कर देना चाहिए, पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी. आप अकेले बोल रहे हो, अकेले पर्सन को आप सिर्फ हवा में बातें करोगे कि हाँ पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए ये कर दो,
छोटे होते हुए हम ये सोचते थे अगर गरीब हैं इंसान तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छाप के क्यों नहीं देते हैं इनको, गरीबी दूर हो जाए। तो ऐसा नहीं होता बेटा, आप अपनी मर्जी से मशीन ले आए घर में और पैसा छापते रहे या गवर्नमेंट छाप के आपको देती रहे, ऐसा नहीं होता है। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन के कैसे करेंसी को छापा जाएगा। इट शुड बी बैक्ड बाय गोल्ड रिजर्व्स। जितना गोल्ड और रिजर्व्स आपके पास है, बैकअप है, उतना ही आप करेंसी छाप सकते हो, जो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। यानी कि बचपन में जो हम सोचते थे कि हम लोग बस करेंसी छाप के सबको दे देते हैं और गरीबी मिटा देते हैं बेटा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट तो ये काम आराम से कर सकती है, मशीन उनके पास है, रुपए वो जितने चाहें छाप सकते हैं, गरीबों को बांट सकते हैं और ठीक है, पॉवर्टी दूर हो गई। तो ऐसा नहीं होता है, तो वो आप स्टडी करेंगे बहुत डिटेल में मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो दिस इज़ आवर टॉपिक फॉर टुडे। Today we have covered meaning as well as features of microeconomics. अभी आपको ये याद रखना है, आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे एक एक टॉपिक को, तो मेजर आपका सब लर्निंग इधर से ही हो जाएगा। यू कैन लर्न इट ओवर हियर ओनली। बाकी you go through the notes once, twice or thrice, you will come to know exactly the points which you are not able to understand. You can refer to the lecture once again. Okay? And still if you have any doubts, you can discuss it with me on your 12th F group, or you can call me personally for any doubt. Thank you very much students for listening. Thank you.